Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel, Drishti Academy. So, today we are back with one of the most important discussions of previous year questions on the topic metals and non-metals. My dear students, it's an important chapter from chemistry class 10th. Make sure that you are reading and revising it carefully, bachcho. Aye. So, let's begin, people. Okay. The very first question to us, see, which of the following pairs will give displacement reactions? So whenever the question is asked on displacement reaction, students, what you are supposed to do is, you need to check the reactivity series. Okay. That means reactivity series wherein we actually assemble the metals from high reactivity to lower reactivity. That means in the decreasing order of their reactivities. Okay, students, see. So first of all, let me show you the reactivity series and thereafter you can answer. What is K? Potassium, then sodium, then calcium, then magnesium, then aluminium, then zinc, then iron, lead, hydrogen, यहाँ हम इसे mark करके रखते हैं basically, then copper, then silver, and then gold. Right? Did you check the reactivity series now? Okay, students. See. So, the displacement reaction will occur when we have a strong metal. Right? अगर हमारे पास strong metal है, तो वो मेटल वीक वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से वीक वाले मेटल को बाहर कर देगा और उसके जगह पर वो खुद आ जाएगा. क्या समझे? दैट मीन्स द हाई रिएक्टिव मेटल will displace the lower reactive metal from its salt solution. ठीक है, देखिएगा NaCl and copper आप किस में कंपेयर करोगे? Na और कॉपर. देखना Na कहाँ पे है? मैम यहाँ पे है. कॉपर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? यहाँ पे है. दैट मीन्स कॉपर लेस रिएक्टिव है, Na ज्यादा रिएक्टिव है. तो क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नो. So this is not our option. MgCl2 and aluminium. मैग्नीशियम कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे है. एल्यूमिनियम कहाँ पे है? यहाँ पे है. कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम. क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो मैम. तो यहाँ पर भी आंसर गलत हो गया. FeSO4 एंड सिल्वर मेटल. फाइंड आउट Fe. Fe कहाँ है? ये रहा. सिल्वर Ag. कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैम Fe ज्यादा रिएक्टिव है. क्या सिल्वर Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो मैम. ये भी हमारा आंसर नहीं है. AgNO3 एंड कॉपर मेटल. फाइंड आउट Ag. वेयर इज Ag? मैम यहाँ पे है. वेयर इज कॉपर? मैम यहाँ पे है. कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सो कॉपर विल डिस्प्लेस silver from its salt solution. That means my answer will be option number D. All right? I have marked option number D, students. ठीक है? आप reaction भी देख सकते हो. Copper, what is this? Silver nitrate. Okay? This is copper. This is silver nitrate. What will form बच्चों? Copper nitrate and silver metal will be released. Okay, moving ahead with the next question. Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Frying pan को रस्ट करने से हम कैसे बचा सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, सी. Applying grease, yes. Applying paint, yes. Applying a coating of zinc, yes. All of the above will be the answer. Rusting of iron is due to reaction with oxygen and moisture. Iron कैसे rust होता है? Iron basically reacts with oxygen as well as moisture.
to form iron oxide. See, अब हमें क्या करना है बेटा, देखो ये मान के चलते हैं हमारा आयरन का ब्लॉक है, Fe block. Fine. What I'll do to prevent rusting, that means I'll apply a coating. What I'll do, beta? I'll apply a coating. Let us apply a coating over here. Done. अब क्या ये ऑक्सीजन के एक्सपोजर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है? नो. क्या ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में डायरेक्टली है? नो. है ना? तो हमने क्या किया, हमने एक लेयर लगा दिया और उस लेयर से क्या हुआ बेटा, उस लेयर से हमने प्रिवेंट करवाया रस्टिंग. ठीक है. अब लेयर वो ग्रीस की भी हो सकती है, वो पेंट की भी हो सकती है, वो जिंक की भी हो सकती है. डन पीपल. आई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, पहले आप ये आइडेंटिफाई करना सीखो कि व्हाट इज आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन. दे आर आस्किंग कि मेरे पास एक एलिमेंट है, मतलब इंफॉर्मेशन है कि एक हमारे पास जो है वो क्या है, एलिमेंट है. ये एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. और ये कंपाउंड जो है बेटा ये वाटर सॉल्यूबल भी है. सी, कौन सा एलिमेंट होगा? सो माय एलिमेंट विल बी कैल्शियम. क्यों कैल्शियम क्यों होगा मैम, कैल्शियम क्यों होगा? देखो सबसे पहले ये चीज समझना कि कैल्शियम, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट with oxygen, what it will form? It will form calcium oxide. है ना? जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं बेटा? मेटल के ऑक्साइड्स. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना ये बहुत हाई, आप देख सकते हो. रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शन आपको चैप्टर 2 में बताई गई होगी, जहां पर आपने सीखा होगा दैट ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विथ वाटर दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. है ना? कैल्शियम ऑक्साइड विच इज कॉल्ड एज क्विकलाइन, वो जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है. फाइन. अब जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये ना स्पेरिंगली सॉल्यूबल है ना? अब उसको डिसॉल्व करोगे तो ये थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा एंड इट विल गिव यू एन एल्कलाइन सॉल्यूशन. ठीक है. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक. क्या मतलब? मैम फूड कैन्स जो होते हैं हमारे, है ना, फूड कैन्स, आपने कैन्स वगैरह देखे होंगे, उसको हमने ना टिन से कोट करते हैं, जिंक से नहीं करते हैं. टिन से करते हैं, जिंक से नहीं करते हैं. क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है. क्या रीजन है इसका? बताओ. आप इसको आंसर करोगे रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग करोगे बेटा? आप कब किसको प्रेफरेंस देते हो? हमेशा जो लेस रिएक्टिव होता है बच्चों, है ना, जो लेस रिएक्टिव है उसी को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि हाई रिएक्टिव वाले सब्सटेंसेस अगर हम यूज करेंगे वो भी खाने जैसे सामान में या उनकी पैकेजिंग करने में, तो दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो हमें क्या सोचना पड़ेगा? हमें ये सोचना पड़ेगा कि वी विल बी एक्चुअली गोइंग ऑन with less reactive things, right? देखो, zinc is costlier than tin? No. Zinc has a higher melting point than tin? No. Zinc is more reactive than tin? Zinc is more reactive than tin? Yes. है ना? Food cans must be coated with a less reactive metal so that coating does not react with food acids and spoil the contents. Okay, moving ahead
Which of the following property is generally not shown by metals? Metals की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये क्वेश्चन वहां से बनाया गया. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या मेटल्स करते हैं? यस मैम. सोनोरस होता है? यस मैम. सोनोरस मीन्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग. ठीक है. डलनेस होती है क्या? नहीं. मेटल्स हैव शाइनी सरफेस. यहाँ पे नॉट शोन पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी. फाइन. नेक्स्ट. द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स क्या बोलते हैं? 1 मार्क का क्वेश्चन. डक्टिलिटी. मेलिएबिलिटी क्या होती है? थिन शीट्स में बनाना. सोनोरिसिटी अभी मैंने बताया, प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग. एंड कंडक्टिविटी दो तरीके से देखते हैं, एक हीट के थ्रू विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. दोनों में मेटल्स आर केपेबल. ठीक है. नेक्स्ट. एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल. एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. क्या प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम में है जो इस चीज को करने में हेल्प कर रही है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा एल्यूमिनियम में जो इस चीज को करने में हेल्प कर रही है? बताओ कौन सी प्रॉपर्टीज है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी. आप थर्मल कंडक्टिविटी समझ रहे हो? थर्मल मीन्स हीट के थ्रू कंडक्टिविटी करना, या हीट को जो कंडक्ट करते हैं दे आर थर्मली कंडक्टिव इन नेचर. ठीक है. देखो, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है तभी खाना पकेगा. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इस क्वेश्चन में कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे खाने बनाने की बात कर रहे हैं, है ना. डक्टिलिटी, क्या हमने वायर्स बनाने हैं? नो मैम. हाई मेल्टिंग पॉइंट जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारा जो एल्यूमिनियम का वेसल है ना, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो मेटल पिघल जाएगी. हाँ या ना? क्या हम उसमें खाना बना पाएंगे? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. मेटल को पिघलना नहीं चाहिए. राइट. सो आंसर विल बी 1 and 4. कौन से ऑप्शन में बेटा? डी. सो आंसर विल बी डी. नेक्स्ट. What happens when calcium is treated with water? क्या होगा जब कैल्शियम को हम पानी के साथ ट्रीट करेंगे? मतलब आपको बताना है कैल्शियम और वाटर के बीच का रिएक्शन, है ना. It does not react with water. No, it reacts with water. It reacts violently with water, not that much, but हाँ less vigorously करता है ना. Less violently करता है with water. ये सही है. Bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium. और आपके बुक में भी ये चीज मेंशन करी गई है बेटा, आप पढ़ोगे तो आपको फील होगा वहां पे कि जैसे ही वो मेटल के सरफेस पे गैस के बबल्स स्टिक कर जाते हैं तो वो फ्लोट होने लगता है. दैट मीन्स दैट मेटल एक्चुअली स्टार्ट्स टू फ्लोट. फाइन. तो 3 and 4 मेरा आंसर हो जाएगा. 3 and 4 डी नंबर आंसर इज करेक्ट. सो आंसर विल बी डी. नेक्स्ट. Which of the following metals does not react with cold as well as hot water? मैम कोल्ड से भी नहीं कर रहा, मैम हॉट से भी नहीं कर रहा, मतलब हमें लेसर या फिर लीस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल को चूज करना है. समझ गए? बताओ. सोडियम नो मैम. कैल्शियम एकदम नहीं. मैग्नीशियम एकदम नहीं. ये सारे विगरसली रिएक्ट करते हैं बेटा, है ना. ये वाला थोड़ा लेस विगरसली करता है, बाकी आप आंसर मार्क करेंगे डी. फाइन. आयरन, yes or no? You can read it. Done. चलो आ जाओ. Next, which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction with steam? ठीक है, देखिएगा. आपने देखा होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स दे एक्चुअली कीप ऑन चेंजिंग. दैट मीन्स कि कोई मेटल हॉट वाटर के साथ कर रहे हैं, कोई कोल्ड वाटर के साथ कर रहे हैं, कोई आपका जो है स्टीम के साथ कर रहे हैं, है ना.
और कोई तो ऑलमोस्ट कर ही नहीं रहे हैं, लाइक दे आर, वी डू नॉट केयर अबाउट बीइंग रिएक्टिव, है ना, तो वो वैसे मेटल्स हैं। तो बेटा आप यहाँ पर देखना क्या बनेगा, देखो आयरन जैसे ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है बेटा, इट विल बी Fe3O4। अब ये Fe3O4 है ना, ये एक प्रॉपर ऑक्साइड नहीं है, ये पता है क्या है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। व्हेन आई एम सेइंग इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड, दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर बना है। देखो इसमें मिक्सचर होता है FeO का, राइट, एंड Fe2O3 का, Fe2O3 का। Now can you count how many iron we have? Iron atoms, how many iron atoms we have? Fe यहाँ पर एक है, यहाँ पे दो है, कितने हो गए? Fe3 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे एक, 3 यहाँ पे O4, ये ऐसे मिलकर बना है, समझे? ठीक है, तो देखो क्या होगा, आंसर विल बी व्हाट, prolonged reaction. Okay, Fe3O4 will be the answer, option number C. Moving ahead, generally metals react with acids to give salt and hydrogen gas. आपसे बोला गया, एक general assumption दिया गया है आपको, एक general statement दिया गया है कि क्या दिया गया है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सारे लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ी है, हाँ मैम पढ़ी है हमने, तो ये वाली रिएक्शन पढ़ी है ना। तो देखो which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals। और पते की बात ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में खुद में बोल दिया है कि एक्सेप्ट Mn and Mg, बच्चे क्या करते हैं, इसको रट के चले जाते हैं कि ये दोनों मेटल्स जो है सॉल्ट बनाएंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होने देंगे, है ना। अब क्वेश्चन में एक्सेप्शन के साथ पूछा है, तो अब बताओ इसमें से क्या होगा। आप लोगों को पता है H2SO4 HCl HNO3 ये सारे क्या है, एसिड्स है बेटा, फाइन। इसमें से कौन सा एसिड नहीं रिएक्ट करेगा पता है आपको, HNO3 नहीं करेगा, पता है क्यों, रीजन क्या होगा इसका, रीजन ये होगा कि जैसे ही ये नाइट्रिक एसिड, ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इंस्टेड ऑफ लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडाइज कर देगा, ये हाइड्रोजन को रिलीज एज सून एज द हाइड्रोजन इज रिलीज, तुरंत से पहले उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, है ना, टू फॉर्म व्हाट, वाटर। ये पहले H2 था, ये ऑक्सीडाइज होके बन गया H2O, yes or no, fine, and itself get reduced to oxides of नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, है ना, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज करने के बाद बेचारा खुद रिड्यूस हो जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे चले, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया, ये आप याद रखिएगा, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, important question, okay। dilute HCl is to concentrated HCl, no, concentrated HCl dilute HNO3, no, concentrated HCl concentrated HNO3, मतलब मेरे को दोनों के दोनों एसिड्स पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, फाइन। अच्छा इसका रेशियो क्या आएगा बेटा, 3:1, मतलब 3 पार्ट्स हमने HCl के लेने हैं और 1 पार्ट हमने किसका लेना है बेटा, HNO3 का लेना है, समझ गए। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, नॉट पूछा है। टेक माय सजेशन, डू वन थिंग, while solving the MCQs highlight the word not, okay,
बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, राइट, आप हड़बड़ी में वो नॉट का आंसर ना करने के बजाय आप यस का आंसर कर देते हो। होता है कभी कभी ऐसा, because at that moment you are already under pressure to solve your entire question paper, है कि नहीं? तो आप लोग ऐसा करना कि आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग से तो सेंटेंस वैसे भी स्टार्ट होता है, उसके बाद हमें पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन में। यहाँ पे नॉट पूछा है बेटा, आयनिक कंपाउंड नहीं है। KCl आयनिक है, यस मैम। HCl आयनिक है क्या? HCl आयनिक है क्या? HCl आयनिक है? नो, ये बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है। CCl4 कैसा है? CCl4 भी कोवेलेंट कंपाउंड है। NaCl कैसा है? आयनिक है। मैम आप कैसे इतना फटाफट आइडेंटिफाई कर ले रहे हो? बिकॉज वी हैव रेड अबाउट द स्ट्रक्चर्स। हमने शेयरिंग से, पेयरिंग से हमने कोवेलेंट के स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे हैं, राइट? कहाँ सीखे हैं मैम? चैप्टर नंबर 4। आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स का टॉपिक, आप अगर ऐसा फील कर पा रहे हो कि मैम कोवेलेंट कंपाउंड्स तो लाइक चैप्टर 3 में मेंशन नहीं किया हुआ था, तो आप देखना चैप्टर नंबर 4 जैसे ही शुरू हो रहा है वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड्स का कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ है, ठीक है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आप देख लीजिएगा कि कौन से कोवेलेंट है, कौन से शेयरिंग से बनते हैं, है ना, और कौन से आयंस के एक्सचेंज से बनते हैं। फाइन, देन योर पार्ट विल बी क्लियर। देखो जैसे KCl है ना, तो ये किससे मिलकर बना है बेटा? K प्लस एंड Cl माइनस से मिलकर बना है। वैसे ही जो हमारा NaCl है ये Na प्लस से मिलकर बना है और Cl माइनस से मिलकर बना है। समझ गए? फाइन, मूविंग अहेड। Which of the following metals exist in their native state? Native state मतलब वो जैसा है वो वैसे ही मिल रहा है, राइट? अनकम्बाइंड फॉर्म, किसी से भी कंबाइन करके नहीं, जैसा है प्लेन है वैसा ही मिल रहा है। मैम क्या होगा इसमें आंसर? कॉपर, यस। क्या गोल्ड होगा मैम? यस, क्योंकि एक नोबल मेटल भी हम इसको मानते हैं, ये रिएक्ट नहीं करता जनरली, है ना? बट जिंक और सिल्वर ये नेटिव स्टेट में नहीं मिलते हैं, तो आंसर विल बी व्हाट? कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर एंड गोल्ड, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. Done. Moving ahead. Generally metals react with acids to give, अच्छा we have actually discussed the question already, we have already discussed, है ना? Already done. इसका आंसर मैंने बताया था आपको HNO3, है ना? चलिए आगे चलते हैं। Which of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? आयनिक कंपाउंड्स कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट, देखो फिर नॉट का क्वेश्चन है, फिर से नॉट का क्वेश्चन है। solubility in water, yes ma'am they are soluble. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नहीं बेटा, हमेशा याद रखना है कि सॉलिड स्टेट में ये चीज कंडक्टिव नहीं होगा। क्यों मैम? सॉलिड स्टेट में क्योंकि आयंस का जो आयनाइजेशन है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए देखो अब बात ये है कि कंडक्टिविटी तब होगी जब मेरे पास फ्री आयंस होंगे, बट सॉलिड स्टेट में तो ये पैक्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देता है बेटा, है कि नहीं? In solid form, ions are fixed in the lattice and cannot move. Move ही नहीं कर पाएंगे ions. So ionic compounds do not conduct electricity in solid state. Done? चलिए आगे चला जाए। Silver articles become black on prolonged exposure to air. क्यों? क्या बन जाता है ऐसा? क्यों ब्लैक हो जाता है? आपने देखा होगा सिल्वर के आर्टिकल्स क्यों ब्लैक हो जाते हैं, क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बेटा बताओ? सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। कौन सा सिल्वर सल्फाइड है इसमें से? Ag2S, विच इज ब्लैक इन कलर।
ओके, कलर याद रखिएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चले। Metals are refined by using different methods. Which of the following metals are refined by electrolytic refining? ये क्वेश्चन आपका मेटलर्जी से है बेटा, ध्यान रखिएगा. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम क्यों करते हैं? दैट्स द मेन क्वेश्चन, राइट? करते क्यों है बेसिकली, उसको थोड़ा सा समझिएगा. टू ऑब्टेन मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी. क्यों करते हैं? इम्प्योर मेटल को अलग करने के लिए करते होंगे मैम. डेफिनेटली यस. द इम्प्योर मेटल इज मेड एट द एनोड. A pure strip of the same metal is made at actually as cathode. और सोल्यूशन हम मेटल सॉल्ट का लेते हैं एज द इलेक्ट्रोलाइट. तो इसमें से कौन से मेटल होंगे बेटा, बताओ कौन से होंगे? कॉपर एज वेल एज गोल्ड. कॉपर एज वेल एज गोल्ड. 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. Yes or no? सोडियम एंड पोटेशियम मैम, ये इनका कैसे करेंगे? इनका क्या होगा मैम? देखो, these highly reactive alkali metals are obtained by electrolysis of their molten salts, है ना? Not by electrolytic refining. electrolysis से करेंगे. Make that point clear. Electrolysis and electrolytic refining are two different terms in the same chapter. Okay. Next question. Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? अभी हमने डिस्कस किया था. क्या होगा बोलो? सोडियम क्लोराइड, Na. सोडियम will be the answer. और कैल्शियम, कैल्शियम का भी वैसे ही करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से ही करेंगे बेटा. दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे एंड दैट टू बाय द क्लोराइड्स. ठीक है. 1 and 2, 1 and 2. ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. नेक्स्ट. Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of what? Zinc. जिंक से करेंगे. गैल्वेनाइजेशन कैसे होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर हम लगाते हैं, जिंक की लगाते हैं ना. इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. जिंक acts as a protective barrier and also provides sacrificial protection because it is more reactive than iron. Even if, अच्छा sacrificial मतलब पहले ये sacrifice हो जाएगा खुद से, है ना? पहले जिंक sacrifice होगा, उसके बाद इसको sacrifice होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. किसको मैम? किसको? आयरन को. इवन इफ द जिंक लेयर इज स्क्रैच्ड, आप इसे स्क्रैच कर लो, जिंक को रोड कर जाएगा, प्रेफरेंशियली प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन. यस और नो? ये याद रख लेंगे. ऑल राइट. सो आई हैव डिस्कस्ड like almost all the MCQs from the previous year questions of this chapter, as well as I have added a few more from my side also, है ना बच्चों? तो I hope that you have understood this lecture and मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. स्टूडेंट्स, मेक श्योर करिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें एंड देन यू कैन एक्चुअली स्विच टू सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स फॉर द सेशन. All right, students, time is very less and you need a lot of efforts to nail this exam, and you will do it बच्चों. We actually believe in you, है ना? आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में. Take all our best wishes and do very well in your exams. Thank you बच्चों. Stay connected with us.